Dear students, today we will be dealing with very important chapter Dandi Salt March. As you all know that Gandhiji along with his disciples had marched to break the salt law. So today we will be dealing with it in detail. On March 12, 1930, prayers having been sung, Gandhiji and 78 male and female members of the ashram whose identities were published in Young India for the benefit of the police left Sabarmati for Dandi, due south of Ahmedabad. Gandhi leaned on a lacquered bamboo staff 1 inch thick and 54 inches long with one iron tip. Following windy, dirty roads from village to village, he and his 78 disciples walked 200 miles in 24 days. We are marching in the name of God, Gandhi said. So Gandhiji started his march on March 12, 1930 and from Sabarmati ashram to Dandi. एंड ऑल द आइडेंटिटीज़ ऑल द पीपल जो लोग भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन यंग इंडिया में पब्लिश्ड हुई थी एंड वो एक स्टिक लेके चल रहे थे अपने साथ जो 1 इंच थिक थी एंड 54 इंचेस लॉन्ग और उसके बाद डर्टी रोड्स और विलेज से ट्रैवल करते करते उन्होंने ही एंड हिज 78 डिसाइपल्स 70 शुरू में उनके साथ 78 डिसाइपल्स थे एंड दे वॉक 200 माइल्स इन 24 डेज. तो 24 डेज तक के उन्होंने निरंतर यात्रा की. Peasants sprinkles the roads and strewed leaves on them. Every settlement in the line of march was festooned and decorated with India's national colors. From miles around, peasants gathered and kneel by the roadside as the pilgrims passed. Several times a day, the marchers halted for a meeting where Mahatma and others exhorted the people to wear khadi, abjure alcohol and drugs, abandon child marriage, keep clean, live purely, and when the signal came, break salt law. तो गांधी जी और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो हर गांव रास्ते में जाते हैं और गांव के लोग क्या है उनका स्वागत करते हैं. जिस भी रोड से वो जाते हैं उसको डेकोरेट की जाती है और लोग उनके ऊपर चावल और फूल छिड़कते हैं और महात्मा गांधी जहाँ भी जाते हैं वो लोगों की सभा लेते हैं और लोगों को आह्वान करते हैं कि खादी पहनिए, अल्कोहल का त्याग करिए, किसी प्रकार की एलोपैथी ड्रग्स मत लीजिए, चाइल्ड मैरिज मत करिए और स्वच्छ रहिए और जब आपको सिग्नल मिलेगा तो आप सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दीजिए. He had no trouble in walking less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage. He said child's play. वो 12 माइल्स तक के बहुत आसानी से चल सकते थे और ये इनके लिए बच्चों का खेल था. Several became fatigued and footsore and had to ride a bullock cart. A horse was available for Gandhi throughout the march, but he never used it. The modern generation is delicate, weak, and much pampered. Gandhi commented, he was 61. He spun every day for an hour and kept a diary and required each ashramite to do likewise. तो गांधी जी के लिए 12 माइल चलना एक बच्चों जैसा था और बल्कि उनके जो साथ में लोग चल रहे थे उनके पैरों में फुट सोर दैट इज़ छाले पड़ जाते थे और कई लोग तो बुलक कार्ट से चलते थे, बैलगाड़ी से. गांधी जी के लिए पूरी मार्च के दौरान एक घोड़ा अवेलेबल था ताकि वो थक जाए तो उसमें बैठ जाएं, परंतु वो बिल्कुल थकते नहीं थे. वो 61 ईयर्स के थे और रोज़ स्पेन करते थे, चरखा काटते थे और सबको कहते थे कि सभी इस तरीके की जीवन शैली को अपनाएं. In the area traversed over 300 villages headmen gave up their government posts. The inhabitants of the village would accompany Gandhi for the next village. Young men and women attached themselves to the marching column. When Gandhi reached the sea at Dandi on April 5th, his small ashram band had grown into a non-violent army several thousand strong. तो जब गांधी जी आगे बढ़ते गए तो लोग क्या है उनको फॉलो करने लगे और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और जब वो 5 अप्रैल को डांडी में पहुँचे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो 78 मेंबर्स थे और जब वो
दांडी पहुँचे 5 अप्रैल को, तो सेवरल थाउजेंड लोग उनसे जुड़ चुके थे। लोग क्या है, अपनी गवर्नमेंट जॉब त्याग के और गांधी जी के फॉलोअर बन के उनके साथ सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए निकल पड़े। The entire night of April 5th, the Ashramites prayed, and early in the morning they accompanied Gandhi to the sea. He dipped into the water, returned to the beach, and there picked up some salt by the waves. अब गांधी जब 5 अप्रैल की रात भर लोगों ने भजन कीर्तन किया और उसके बाद सुबह से वो सी शोर में गए और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट उठाया और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। मिसेस सरोजनी नायडू स्टैंडिंग बाय हिज साइड क्राइड, हेल डिलीवरर। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया तो मिसेस सरोजनी नायडू ने कहा, हेल डिलीवरर। Gandhi had broken the British law which made it a punishable crime to possess salt not obtained from the British government salt monopoly। तो ये सॉल्ट लॉ क्या था? एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली कंपल्सरली कर दिया था कि जो ब्रिटिशर्स सॉल्ट बनाएंगे वही सॉल्ट सब लोग उपयोग करेंगे और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया था। तो इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। गांधी who had not used salt for 6 years called it a nefarious monopoly। जबकि गांधी जी खुद 6 वर्षों से सॉल्ट नहीं खा रहे थे, परंतु जो ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी ये इंडियन लोगों के लिए ठीक नहीं थी और जो इंडिया का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसमें सॉल्ट अति आवश्यक होता है क्योंकि लोग यहाँ बहुत लेबर करते हैं और पसीने आते हैं। तो इस कारण उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। जिस प्रकार एयर और वाटर एसेंशियल है उसी प्रकार इंडिया में क्या है, सॉल्ट की ज़रूरत है। दैट्स वाई पुअर पीपल कुड नॉट बाय द सॉल्ट मेड बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। हैड गांधी गॉन बाय ट्रेन और मोटर कार टू मेक सॉल्ट द इफ़ेक्ट वुड हैव बीन कंसिडरेबल। अगर गांधी जी मोटर या कार से जाते तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा सॉल्ट मार्च का वो नहीं पड़ता। But to walk for 24 days and divert the attention of all India to track across a country wide saying, watch, I am about to give a signal to the nation, and then to pick up a pinch of salt in publicized defiance of the naughty government, and thus became a criminal, required imagination, dignity, and the sense of a showmanship of a grand artist। तो जिस तरीके से उन्होंने दांडी की यात्रा की, जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ते गए और जिस प्रकार से उन्होंने सॉल्ट उठा के सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पब्लिसिटी हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड और उन्होंने हर चीज़ डिग्निटी के साथ किया और इसको एक शोमैन की तरह एक पॉपुलैरिटी मिली। It appealed to the liberate peasants and it appealed to the sophisticated critic। तो जो लिबरल लोग थे उनको भी इनकी ये यात्रा और उनका ये एक्ट अपील किया और जो उनके क्रिटिक थे उनको भी ये क्या अपील किया और जो पीसेंट्स थे उनको भी ये एक्ट उनका अपील किया। मीन्स इस एक्ट को सभी ने पसंद किया। It appealed to sophisticated critics and sometimes fierce opponents of Gandhi like Subhash Chandra Bose, who compared Salt March to Napoleon's march to Paris on his return from Elba। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और गांधी जी की विचारधाराएं भिन्न थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी की जो सॉल्ट यात्रा है उसकी प्रशंसा की और उसको कंपेयर किया नेपोलियन की जो मार्च थी, मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। तो नेपोलियन जो पेरिस की तरफ मार्च किए थे उससे उन्होंने कंपेयर किया। द एक्ट परफॉर्म्ड गांधी विड्रू फ्रॉम द सीन, इंडिया हैड इट्स क्यू, गांधी हैड कम्युनिकेटेड विथ इट बाय लिफ्टिंग अप सम ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट। तो गांधी जी ने ये सॉल्ट लिफ्ट करके लोगों को ये संदेश भेज दिया था कि अब हम ब्रिटिशर्स के सामने नहीं झुकेंगे, उनके किसी भी प्रकार के ऐसे कानून को नहीं मानेंगे और धीरे से हम स्वराज लेके ही मानेंगे। तो इस तरीके से दांडी सॉल्ट मार्च जो है संपन्न हुई
और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। नाउ मैच द वर्ड्स, मैच कॉलम है, आपको मैंने PDF भेजा है, उसको आप देखिए। पहला शब्द है लैकर्ड। लैकर्ड का मीनिंग होता है कोटेड विथ वार्निश। गांधी जी की जो स्टिक थी इट वॉज लैकर्ड विथ वार्निश, मीन्स इट वॉज कोटेड विथ वार्निश। दूसरा शब्द है फेस्टून। फेस्टून का मतलब होता है डेकोरेटेड विथ अ चेंज ऑफ फ्लावर फ्लैग्स। जब आप देखते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, या नेता लोग आते रहते हैं, या किसी का बर्थडे होता है, तो आप देखते होंगे सारे शहर में फ्लैग्स, फूल, ये सब लगा देते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं फेस्टूनिंग। तो गांधी जी जब मार्च, डांडी साल्ट मार्च कर रहे थे, तो जिस भी विलेज में जाते थे, सो इट वॉज फेस्टून विथ फ्लैग एंड फ्लावर्स। स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना या शावर्ड विथ वाटर। जब हम पूजा करते हैं या इसी प्रकार का कुछ ऐसा एक्ट करते हैं तो उसमें हम पानी छिड़कते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलिंग। चौथा वर्ड है स्ट्यूड। स्ट्यूड का मतलब होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखर जाना, छितराना। नेक्स्ट है ट्रावर्स्ड। ट्रावर्स का मीनिंग होता है ट्रैवल अक्रॉस। छठवां शब्द है फटीग। फटीग मतलब थक जाना, थकान हो जाना। नेक्स्ट है एग्जॉर्टेड। एग्जॉर्टेड मतलब अर्ज्ड स्ट्रांगली, किसी को आह्वान करना। गांधी जी exhorted people to wear khadi, to abjure alcohol, to give up child marriage and all these things. And last word is pampered. पैम्परिंग मतलब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, जैसे बच्चे, पेरेंट्स स्पॉइल द चाइल्ड बाय पैम्परिंग दैम, तो हम कहीं बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, तो दैट इज़ पैम्परिंग। तो ये जो मैच दी कॉलम है, ऑल द मैच आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज 10 मार्क्स, या आप ये मान के चलिए कि आपके जो 10 मार्क्स के ये मैच दी कॉलम से आते हैं, तो आपको ये वोकैबुलरी भी एनरिच होगी, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर से आता है, और कई बार इसके ऊपर टॉपिक लिखने आता है, पैराग्राफ राइटिंग आती है, जो 10 मार्क्स के रहते हैं। तो आपको पहले मैं वो चैप्टर्स करवाते जा रही हूँ जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं कि कब when Dandi Salt March started, how many, on which day did this Dandi Salt March commence, how many members of the Sabarmati Ashram accompanied Gandhi on his march, in which magazine were the names of the people were published, what was the length of the stuff when Gandhi carried, how many days it take the Satyagrahis to reach Dandi, what did Gandhi exhort people to do when he addressed them to the way or to Dandi, what was considered child's play by Gandhi, on which date Gandhi and his followers reached Dandi, how many people reached Dandi। तो ये सब क्या है, आप जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है, आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या है, अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो फॉर टुडे इट इज़ completed. Thank you.